چودھری خالد مسعود سندھو صاحب تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تابش قیوم صاحب جو مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان مرکز مسلم لیگ کے، اور شیخ فیاض صاحب جو وسطی پنجاب کے صدر ہیں، ان کے گفتگو سن رہے تھے، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آج جو دنیا کے حالات میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور غزہ والے لوگ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اکثریت سے ڈرا نہیں جاتا، اقلیت ہونا جرم نہیں ہوتا، بندے تھوڑے بھی ہوں، ایمان والے ہوں، ارادے والے ہوں تو دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کیا غزہ والوں کو آج دنیا بہترین سہولتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت بڑی بڑی سہولتیں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑی جائیدادیں دیتا ہوں وہاں سے نکال کر۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم انہی کھنڈروں میں رہنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، ان کی ذات تو اس وقت تکلیف میں ہے، ان کے تو بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، ماں باپ شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہیں، نہتے ہیں، بھوکے ہیں۔ یہاں بارش ہو جائے نا تو خدا نخواستہ کسی کا کوئی کمرہ گر جائے یا اس میں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے تو ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ وہ 7 اکتوبر جس کو آج تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، اس وقت سے لے کر اس گرمی میں، سردی میں، بارش میں، دھوپ میں باہر ہوتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں بمبوں کو، ویلکم کرتے ہیں میزائلوں کو، اللہ کے نام پہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کیا ہم کبھی اس پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی ہر چیز قربان کر دی ہے، انہوں نے اپنی جائیداد قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولادیں، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ۔ اب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑا واضح مفہوم ہے کہ تمہیں ان بچوں کی، ان عورتوں کی آوازیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ کیا ہم بہرے ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اندھے ہو گئے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آج ان کی بات سنیں، آج ان کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان یہ وہ ملک ہے جو 1947 میں بنا اور 1948 میں صہیونی ریاست اسرائیل کو بنایا گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ادھر وہ سازش دنیا میں پنپ رہی تھی، شر پیدا ہو رہا تھا اور اللہ نے اس ریاست کا بندوبست کر دیا۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی آواز اٹھ سکتی ہے، کوئی آگے بڑھ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام ہیں۔
इसलिए कि हम अमलन बहुत कमजोर सही, लेकिन जहां इस्लाम की, जहां ईमान की बात आती है, जहां इस्लाम की बात आती है, जहां मुसलमान की बात आती है, ईमानदारी की बात करता हूं, पाकिस्तान के अवाम पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों से ज्यादा आगे होते हैं और तड़प जाते हैं। इसलिए आज हमें सोचना होगा, हमें उनके लिए भी सोचना होगा जो गजा में इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की जंग लड़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस का कब्जा छुड़ाने के लिए अपने जानों को पेश कर रहे हैं। और हमें अपने इस मुल्क के लिए भी सोचना होगा। आपने थोड़े दिन पहले देखा जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ तो वो किसी शख्स पे हमला नहीं हुआ था, किसी फौजी अदारे पे हमला नहीं हुआ था, किसी पाकिस्तान के हुकूमती अदारे पे हमला नहीं हुआ था। वहाँ पे पैसेंजर, मुसाफिर, आम लोग सफ़र कर रहे थे। क्या हुआ? हमारी सियासी जमातों ने उसमें भी तफरीक पैदा की। चाहिए तो ये था कि हम एक कौम की हैसियत से उसको कंडेम करते, हम एक कौम बन जाते, लेकिन हम ना बन सके। उसकी वजह क्या है, ये आज हमें सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाने के लिए बात की, मशावरत की, तो उस वक़्त यही कहा, यही नारा लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नज़रिया पाकिस्तान। आज इसलिए हम कहते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान ये बकाए पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मरकज़ी मुस्लिम लीग की सियासत, हम जब खिदमत की सियासत कहते हैं तो आज सबसे बड़ी खिदमत ये है कि हम एक कौम बन जाएं, हम आप सबको इकट्ठे करें, हम सब एक नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं। और वो नुक्ता ये है कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा मुल्क है, हमने मिलकर इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है, हमने मिलकर गजा वालों की मदद करनी है। आज हमें वापस एक कौम बनना होगा। आज हम धड़ों में, तबकों में, बरादरियों में तकसीम हो चुके हैं। खुदा के लिए एक कौम बन जाइए। अगर दुनिया में इज्जत के साथ रहना है, अगर दुनिया में वकार के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अगर दुनिया में बताना है कि पाकिस्तान और मुसलमान किसी के आगे नहीं झुक सकता, तो फिर हमें एक होना पड़ेगा। आज पाकिस्तान को साजिश के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। ये दहशतगर्दी जानबूझ के इसलिए यहाँ पे फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान दुनिया में मुसलमानों की और गजा वालों की मदद न कर सके। आज हमें एक कौम बनने का अहद करना होगा। यह रमज़ानुल मुबारक, ये वो माह है, बरकतों वाला महीना है, मग़फ़िरतों वाला महीना है, माफ़ियों वाला महीना है। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगना होगी, अल्लाह से मग़फ़िरत भी मांगना होगी, और हमें वादा करना होगा कि अल्लाह, हम तेरे दीन के लिए, हम इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे हैं और हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। आज पाकिस्तान को ये कहा जाता है तो तुम इतनी रेंज के मिसाइल किस लिए बना रहे हो? क्योंकि उनको पता है कि ये मिसाइल जहां से चलेगा और इसराइल को तबाह कर देगा। आज पाकिस्तान पे दबाव यही है, आज पाकिस्तान पे दहशतगर्दी यही है। इसलिए हम बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात कहते हैं कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी को कंडेम करता है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हर तरह की दहशतगर्दी को कंडेम करती है और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है और गजा के लोगों के साथ खड़ी है। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दुनिया को ये साबित कर देंगे कि हम एक हैं, एक हैं, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपने प्लेटफॉर्म से अपने लोगों को इकट्ठा करेगी और बताएगी कि ये दुनिया में ये वही मुल्क है जो अल्लाह के फजल से दुनिया की क़यादत करेगा, जो मुसलमानों की क़यादत करेगा। और गजा वालों को भी अगर किसी से उम्मीद है तो वो पाकिस्तान है, वो आप हैं, आप लोग हैं। खुदा के लिए उनकी मदद के लिए उठ खड़े होइए, उनके लिए उनकी आवाज़ को खामोश ना होने दीजिए। आज आपके पास मीडिया है, आपके पास मोबाइल है, उनकी पोस्टों को शेयर कीजिए, उनकी आवाज़ को दुनिया में फैलाइए। आज आप उनकी आवाज़ बन जाइए, उनके साथ खड़े, उनकी मदद कीजिए, उनको फंड दीजिए, उनके लिए बंदोबस्त कीजिए, उनके मेडिसिन के लिए, उनके खुराक के लिए, उनको किसी न किसी तरीके से, ताकि कब हम अल्लाह के हजूर जब पेश हों तो ये कह सकें कि हमने अपने हिस्से का जिस हद तक काम कर सकते
सकते थे कर दिया। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का, पाकिस्तान का, गज़ो वालों का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।